and welcome to all the CA Foundation students. वीडियो ऑन डिमांड पे हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Whenever students start studying contract act, they get stuck in these two sections, 64 and 65. कितने सारे मैसेजेस आते हैं मुझे स्टूडेंट्स के कि मैम ये सेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा. डोंट वरी, वीडियो आखिर तक देखो, बिकॉज वीडियो देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से हो जाएगा कि आप मुझे बोलोगे मैम इतना सिंपल था ये कॉन्सेप्ट, हम ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे. स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 and 65 of the Contract Act for you. If you're watching this video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही important वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे. First, let us discuss the provisions of section 64. But in order to understand the provisions of this section, you need to know what is the meaning of the word voidable. You must have studied this, but let's recap the concept. Now, what is a voidable contract? We will understand this with the help of an example. Let's say that a Don forced X to sell his house. Okay? In this case, he forced X to sell his house. He threatened X at gunpoint. He started beating X. X got very scared और उसने बोला भाई ले ले तू मेरा घर ले ले. Now in this case, some physical force is used on X. What is that word known as? Yes, it is nothing but coercion. यहां पर डॉन इज फोर्सिंग एक्स, उसको मारता है, धमकाता है एंड उससे घर ले लेता है. नाउ द हाउस इज वर्थ 2 crore rupees, बट द डॉन बाइज इट फ्रॉम एक्स एट ओनली 2 lakhs. अरे कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन दिखानी है ना, वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा. यू हैव टू शो सम कंसिडरेशन. सो ही बाइज अ हाउस वर्थ 2 crores ओनली फॉर 2 lakh rupees. Now, in this case, law says X's consent is not free. Coercion is used. Dukhi party, also known as the aggrieved party. क्या बोलते हैं उसे? Aggrieved party. The Dukhi party, also known as the aggrieved party, has 2 options. Keep quiet, treat the contract as valid. छोड़ो, घर गया तो गया, जान तो बची. जाने तो कोई एक्शन नहीं लेते, लेट इट बी वैलिड. और बाद में उसको रियलाइज हो सकता है अरे ये मैंने क्या किया, आई शुड हैव गॉन टू द कोर्ट. अगर मैं प्रूव कर देता दैट कोर्जन वाज यूज्ड, आई कुड हैव कैंसिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस केस अनदर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल विद हिम इज, ठीक है तुमने घर बेच दिया, डर के मारे बेचा है ना, बट लेटर ऑन you can, instead of treating the contract valid, आप बोलोगे मैं चुप नहीं बैठने वाला, I'm not going to stay quiet. You can go to the court, prove that coercion was used, you can cancel the contract. A better word for cancellation is you can rescind the contract. Okay, this is a better word for cancellation. You can rescind the contract. Go to the court, prove कि मेरे पे coercion use हुआ था, cancel कर दो. Once the contract is cancelled, you will get back your house. Yes, आप बोल सकते हो that my consent was not free consent, I was forced to do so. If it is proved कि coercion use हुआ था, contract cancel हो जाएगा, आपको अपना घर मिल जाएगा. Now in this case, law बोलता है कि इनके बीच में क्या एग्री हुआ था. देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो बना था ना इनिशियली. डॉन ने प्रॉमिस किया था आई विल गिव यू 2 lakhs और एक्स ने प्रॉमिस किया था कि मैं मेरा घर दूंगा. एग्रीमेंट हो गई है इनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है. एक्स ने अपना घर भी दे दिया, अब तक डॉन ने पैसे नहीं दिए हैं. एक्स को लगा अरे ये मैंने क्या किया, मुझे कोर्ट के पास जाना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए था. ही वेंट टू द कोर्ट, ही कैंसिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, उसको अपना घर मिल गया. शुड डॉन नाउ गो एंड पे हिम ₹2 lakhs? नहीं, डॉन को जब घर मिला ही नहीं तो व्हाई शुड ही पे 2 lakh rupees? If he has not got the house, he will not pay 2 lakhs. यहां पर लॉ बोलता है when a person at whose option contract is voidable. 1 मिनट रुक जाओ, किसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट voidable है? Only and only the aggrieved party.
कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखें, कैंसिल कर दें, these options are available only and only with the aggrieved party, not with the party using coercion. So when a person at whose option contract is voidable, किसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट voidable है, कौन सा पर्सन है ये, अग्रीव्ड पार्टी. ओके, तो ये कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, एग्रीव्ड पार्टी. सो व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, हाँ, जब अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही नाउ डिसाइड्स टू रिसेंड इट. रिसेंड का दूसरा वर्ड क्या बोला था मैंने, कैंसिल. सो व्हेन द अग्रीव्ड पार्टी, जिसके पास ऑप्शंस हैं, डिसाइड्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी, तो मेरे एग्जांपल में कौन हुआ, वो डॉन, need not perform any promise in therein contained in which he is a promiser. ये पार्ट नहीं समझ में आता है, बहुत सिंपल है. डॉन ने भी तो एक प्रॉमिस की थी ना कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपीस दूंगा. जब वो प्रॉमिस कर रहा था, ही इज द प्रॉमिसर, तो वो प्रॉमिस जहां पर वो प्रॉमिसर है 2 लाख दूंगा, वो उसे परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयरिन कंटेन्ड इन विच ही इज अ प्रॉमिसर. मतलब डॉन ने जो प्रॉमिस की थी कि मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, तुम मुझे तुम्हारा घर दे दो, वो 2 लाख वाली प्रॉमिस उसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. अब घर तो मिला ही नहीं, तो पैसे क्यों दे फिर. तो इन दिस केस स्टूडेंट्स, if the aggrieved party decides to cancel the contract, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो सामने वाली पार्टी को भी अपना प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है. देखो एक्स, तुम कोर्ट के पास जाके रेमेडी मांग रहे हो कि मुझे मेरा घर चाहिए. अगर तुम्हें रेमेडी मिल रही है तो सामने वाली पार्टी को भी तो रेमेडी मिलेगी. आप बोलोगे मैम उसने तो कोअर्जन यूज किया था, लेकिन लॉ बोलता है जब हम एक्स का फायदा करवा रहे हैं तो डॉन, तुम्हें भी तो हम वही पोजीशन पे डालेंगे ना. अब देखो, एक्स को अपना घर मिल गया तो डॉन को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है. सो वी आर ट्रीटिंग बोथ द पार्टीज, वी आर पुटिंग देम इन अ पोजीशन एज इफ इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था. ना एक्स ने घर दिया, ना डॉन ने कुछ पैसे दिए. तो सेक्शन 64 एक्चुअली पुट्स दीज पार्टीज इन अ पोजीशन एज इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. ना तुमने घर दिया, ना उसने पैसे दिए. अच्छा, लेकिन हम इतनी सिंपल सिचुएशन तो अज्यूम नहीं कर सकते. व्हाट इफ डॉन ने पैसे दे दिए थे. ओके, व्हाट इफ डॉन ने 2 लाख दे दिए, एक्स ने भी डर के मारे घर दे दिया था. तो लॉ बोलता है देखो एक्स, तुम अब गए हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तुम्हें अपना घर मिल गया, तो क्या वो पैसे भी रख लोगे? नहीं. अगर सपोज डॉन ने पैसे दे दिए थे तो फिर वो तुम्हें रीस्टोर करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू रीस्टोर द बेनिफिट. तो पहली सिचुएशन हमने क्या डिस्कस की स्टूडेंट्स, कि डॉन ने पैसे नहीं दिए थे लेकिन वो जबरदस्ती एक्स से उसका घर ले रहा था. पैसे नहीं दिए ना, तो अभी मत दो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. लेकिन अगर डॉन ने पैसे दे दिए थे, 2 लाख दे दिए थे और एक्स का घर जबरदस्ती ले लिया था, एक्स तुम्हें अभी तुम्हारा घर मिल गया ना, तो ऐसा नहीं हो सकता घर भी रख लो पैसे भी रख लो. You will have to now restore the benefit. This is known as restitution. So let's read the second provision now, students. If the party rescinding a voidable contract, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं ये अभी? The aggrieved party. Okay, if the party rescinding a voidable contract has received any benefit from the other party to such contract, हमारे एग्जाम्पल में उसको क्या मिला था? 2 लाख रुपीज मिले थे. देन ही मस्ट रीस्टोर द बेनिफिट सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट. तो हमारे केस में अगर एक्स अपना घर ले लेता है, उसे कोई बेनिफिट अगर मिला था सामने वाली पार्टी से, ही विल हैव टू रिटर्न, ही विल हैव टू रीस्टोर द बेनिफिट. Is it clear? So these were the provisions of section 64. Next, let us discuss the provisions of section 65. Then we have section 65. Obligation of person who has received advantage. एक minute. What is the obligation of a person who has received advantage? इसका मतलब है कि एक पार्टी को कुछ तो बेनिफिट मिला है
कॉन्ट्रैक्ट में, उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन उसको जो कंसिडरेशन था वो मिल गया है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है, इट मीन्स दे आर रेफरिंग टू वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है ना, इट इज वॉइड एब इनिशियो। और अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, मतलब जब एंटर किया था तब वैलिड था, लेटर इट बिकम्स वॉइड। इन सिंपल वर्ड्स, दो पार्टीज में से एक पार्टी को अपनी कंसीडरेशन मिल चुकी है और फिर हमें पता लगा अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता था, ये तो वॉइड एब इनिशियो है, तो उस बेनिफिट का क्या किया जाए? अब कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं हो रहा, सो व्हाट इज the obligation of the person, what is his responsibility if he has received advantage and later they come to know कि ये तो void agreement है, या बाद में contract enter करने के बाद वो contract पता लगा ये तो perform ही नहीं हो सकता. Let's discuss both with the help of example. Section 65 lays down that where an agreement is discovered to be void, ये तो void agreement है, ये तो void ab initio, parties को पता ही नहीं था कि they are entering into a void contract, गलती से कर दिया होगा. या फिर when a contract becomes void, it means when it is entered that time the contract is valid, बाद में वो void हो गया, अब हमें तो बेनिफिट मिल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म कर नहीं रहे, तो उस बेनिफिट उस एडवांटेज का क्या करें? लॉ बोलता है दे दो सामने वाली पार्टी को, तुमने तो तुम्हारी प्रॉमिस फुलफिल नहीं की, उससे एडवांटेज लेके बैठे हो, प्लीज रीस्टोर, रिटर्न दैट बेनिफिट टू हिम. Any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or you make compensation for it. अगर आपने खर्च कर दिए वो पैसे तो उसे compensation दे दो. To any person from whom he has received, तो जितना आपने benefit receive किया है उससे related compensation दो. Now, when agreement is discovered to be void, seller X agrees to sell a horse to buyer Y and Y agrees to pay 10,000. लेकिन वो बोलता है अब मेरे पास 10,000 रुपीज हैं, तू रख ले यार, कल का कोई भरोसा नहीं है. सो बायर Y pays 10,000 एज एडवांस. यहां पर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अननोन टू बोथ ऑफ देम द हॉर्स डाइड इन द स्टेबल. अब यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि जिस हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो तो डेड है. इन्हें बाद में पता लगा जब वो स्टेबल में देखने गए, अरे अभी तो देखा था ठीक ठाक था, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने बैठे हैं, नहीं डाइड. सो लॉ सेज दैट व्हेन द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ये तो तुम कर ही नहीं सकते ना, यू कांट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डेड हॉर्स. बट उन्हें जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब ये फैक्ट के बारे में पता नहीं लगा, इट वॉज डिस्कवर्ड एट अ लेटर स्टेज. इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो हो नहीं सकता, लेकिन एक्स तुम्हें जो एडवांस मिला है वो तो उसे वापस कर दो ना. सो यू विल हैव टू रीस्टोर द एडवांस. लेकिन मेरा यहाँ पर एक डाउट है, व्हाट इफ कि पार्टीज को पहले से ही पता था कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. जैसे देखो ना यहाँ पर, एक्स गिव मनी टू वाई, लेट्स से 5 लाख रुपीज टू गो एंड किल जेड. उसने बोला ये ले पैसे और जेड को मार. नाउ दे ऑलरेडी नो दैट दिस इज वॉइड एब इनिशियो, दे ऑलरेडी नो. अब वाई ने जेड को मारा ही नहीं, सो कैन एक्स से चल मेरे पैसे वापस कर, अब मुझे, तूने तो मेरा काम किया नहीं, जेड को मारा नहीं. यहां पर रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, इट्स वॉइड एब इनिशियो. अगर एक्स को तुम्हें पैसे वापस नहीं मिले, यू कांट इवन गो टू द कोर्ट, इट्स वॉइड एब इनिशियो एंड यू न्यू अबाउट इट. टू समराइज, you will be able to you will have to restore the benefit only if this fact was not known at the time of entering into the contract. ठीक है. समटाइम्स यू हैव टू मेक कॉम्पेंसेशन. यहाँ पर एक माइनर वाला पॉइंट आ जाता है कि इन केस ऑफ अ माइनर, अगर आपको बाद में पता लगा कि अरे ये तो माइनर है, माइनर से आप पूरा का पूरा बेनिफिट रिस्टोर करने के लिए इंसिस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो. तो वो कॉम्पेंसेशन जो वर्ड है दैट इज इन केस ऑफ माइनर, क्योंकि माइनर के केस में रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट कंप्लीटली तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यू कैन नॉट एनफोर्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन हाँ, इन अदर केसेस जितना भी बेनिफिट मिला है उतना रिस्टोर करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई बात अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिस्कवर्ड टू, एग्रीमेंट विच आर डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, कि
बाद में पता लगा कि अरे ये तो वॉइड है। बट वॉट अबाउट जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना, ये वॉइड हो गया, तब वो बेनिफिट का क्या करे। रेस्टिट्यूशन इज ऑल्सो अलाउड इन केस ऑफ अ void contract, मतलब valid था when entered, later it became void. X agrees to sell wheat after 1 month to Y and Y agrees to pay 10,000 rupees after 1 month, but बोलते कि 2,000 तू पहले एडवांस ले ले, बैलेंस तेको बाद में दूंगा। तो X ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वीट दूंगा आफ्टर 1 मंथ, लेकिन Y बोलता 10,000 का हमारा एग्रीमेंट है, 2,000 तू एडवांस रख ले। Later, private sale of wheat is prohibited by an act of legislation. Law change हो गया, ना प्राइवेट सेल इज बैंड। और ये अभी क्या वो वीट दे पाएगा, क्या वो सेल कर सकता है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, लेकिन उस बेनिफिट का क्या करे, तुमने तो वीट दी नहीं, क्या 2,000 रख लो? नहीं, यू विल हैव टू रीस्टोर द benefit. So law actually tries to place both of them on the same position. ना तुम्हें वीट मिली ना तुमने पैसे दिए। अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेलर ना तुमने वीट दी और ना तुम वो एडवांस रख सकते हो। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे, ना तुमने पैसे दिए ना तुम्हें वीट मिली, इसीलिए रिस्टोरेशन करते हैं, बिकॉज रिस्टोर करने के बाद यू कम एट योर ओरिजिनल पोजिशन, जहां पर ना इसने वीट दी ना उसने पैसे दिए। सो दैट इज द होल लॉजिक। रिस्टोरेशन का यही तो मतलब है कि पुट द पार्टीज इन अ पोजिशन एज इफ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, अभी उन्हें वो लेवल पर लेकर आओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। So that is the logic behind these two sections, to restore, put them in the same position as if there was no contract. Students, I hope कि ये section 64 और section 65 दोनों provisions आपके अभी clear हो गए होंगे, बिल्कुल भी doubt नहीं है। Yes, we discussed everything with the help of example. All the best for your exam, and for more videos do subscribe to your channel Theory Masters Learning, and also visit my website theorymasterslearning.com for books, lectures and test series.